Hello, guys. Welcome to a session of Economics Revision, Prelims Rapid Revision. Uh, this is a lecture series जिसमें I will try to cover the maximum of the economics syllabus relevant to prelims. However, the syllabus would not be gone word by word. Rather, I would be covering only the sections or the main mottos that are lying here and there in economics so that we can solve our prelims question as quickly as possible. Right? So this is the lecture 1 of our prelims rapid revision series. See, the objective again about the series is to revise the concepts on a surface level. I would be sharing with you several key concepts which we find in economics lying here and there. It's visible to our naked eye, but we sometimes miss them out, right? Second, we are not going to study them thoroughly. This is not going to be a thorough session, right? Uh, we are not going to dwell in the basics that if let's say we are discussing about inflation, right? So what is inflation, or what's the difference between deflation and disinflation, right? Such things are not the target of this particular series. Rather, what I would be sharing with you is the key difference to identify which situation is deflation and which situation is disinflation. Okay. Secondly, or the lastly, the most important objective is that our motto of this series is not to predict the questions, but to only proclaim marks while solving questions correctly, right? There's not going to be predictions that this topic is going to come in the prelims or ये पढ़ लो ये current affairs में था नहीं, nothing like that. Only thing that I'm going to share in this series is what you need to know while solving prelims question so as to solve economics section, which today is comprising around 15 questions, right? So around 15 to 19 questions are coming from economics. My objective is that you do not take more than 20 minutes to solve the entire economic section, right? So this is the motto of our objective of our series. Let's begin with economics. The major problem that I have found in my peers or people that I have discussed paper with is that they often forget the golden rule of economics. What's the golden rule? Ceteris paribus. अब कोई अगर BA MA कर रहा है लैटिन, लाइक BA MA लैटिन कर रहा है फ्रॉम DU और JNU, काइंडली राइट डाउन इन कमेंट्स व्हाट दिस टर्म एग्जैक्टली मीन्स. आप लोगों के लिए एक बड़े सिंपल सेंस में दैट ceteris paribus इज नथिंग बट अबाउट कीपिंग द वर्ल्ड कॉन्स्टेंट. ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है. इमेजिन प्लैंक्स कांस्टेंट इज नथिंग बट सेइंग दैट द वर्ल्ड इज रोटेटिंग बट देयर इज अ प्लैंक विच इज कांस्टेंट, right? Similar ceteris paribus है. You only have to keep in your mind that there is a particular situation which is offered to you while solving economics, and in this particular situation you also have been given कि आपको कौन से फेज से जाना है. That is, it may be or they may be asking इन्वेस्टमेंट आया बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज नहीं हुआ, क्यों? राइट, सो दे हैव गिवन यू द फाइनल फेज कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज कंस्टेंट एंड दे हैव गिवन यू इनिशियल फेज इन्वेस्टमेंट आया बाहर से फॉर ह्यूमन स्किल्स अपस्केलिंग. अब इसके बीच में अगर मैं मेंस पर्सपेक्टिव से देखूँ ना, सो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो ये वीडियो देख रहे हैं नंबर ऑफ पीपल वुड outscore me, they would succeed me in telling me how many factors exist, how many current situation या क्या global situation, domestic situation है which is leading to such cause and effect, right? But when I say ceteris paribus, it means आपको एक ऑप्शन लेना है एंड बस उस ऑप्शन को यहाँ पे देखना है कि क्या इसको रख के मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है. नथिंग मोर एट ऑल, राइट? सो रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, ceteris paribus, right? We will see this rule in effect in PYQ solving. अभी के लिए तो बस अभी इसको आप अपना मोटो बना लो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व इकोनॉमिक्स. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद बिगनिंग. सो बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स. पहली बात तो डू यू नीड टू नो द डिफरेंस? येस. वाई? देखो, एक तो आपको चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी. जैसे ही आपको क्लियर होता है ना कि ये कंसेप्ट एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है और ये वाला एक माइक्रो, ऑप्शंस एलिमिनेट बहुत ईजिली हो जाएंगे. ठीक है. सेकेंड इज एप्लीकेशन. क्या होता है कि व्हेन यू नो दैट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज मैक्रो, आप उसको रियल वर्ल्ड में भी एम्प्लॉय करना स्टार्ट कर देते हो, या आप अपने इमेजिनेशन में भी अगर उसको लेके चल रहे हो, यू आर एबल टू मेक थीसिस विच इज़ वेरी एक्यूरेट या वेरी नियर टू ट्रुथ.
दैट इज़ द रीज़न वाई मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड द थर्ड विच इज़ टी, वो हम आगे देखेंगे कि इस टी का मतलब क्या है। अभी आगे चलते हैं। देयर इज़ अ वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो, विच इज़ दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट्स आर दोज विच आर पैन इंडिया। अभी मैं सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, है ना। इफ़ नॉट इन इंडियन इकोनॉमिक टर्म्स, जनरल में बोलूँ तो इसको मैं बोलूँगा कि एक रीजन स्पेसिफिक है एंड दिस रीजन इज़ लार्ज, राइट। मतलब यू आर लुकिंग एट समथिंग विच इज़ वाइड इन स्कोप। ऐसा नहीं मैं एक हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ या मैं बस एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट मच लार्जर स्केल। सो इट कुड बी अ बिग टाउन, अ बिग अर्बन एरिया, कलेक्शन ऑफ विलेजेस, राइट। कहने का मतलब ये है कि उसमें इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इन सेकेंड, इट शुडन बी प्रोडक्ट स्पेसिफिक। इसका मतलब दैट वट एवर द कंसेप्ट यू आर डिस्कसिंग, इट शुडेंट हैव अ इंडिविजुअल कैरेक्टर। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं बात कर रहा हूँ कि बलिनो, राइट। बलिनो मारुति कार या नेक्सिस कार जो भी है ब्रांड इसका, राइट। सो नेक्सा की बलून आई एंड मैं इसकी सेल के बारे में बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द सेल ऑफ बलिनो इन, फॉर एग्जांपल, मुंबई, राइट। कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गया। अगर मैं इसको हटा दूँ और इसकी जगह सिर्फ बात करूँ सेल ऑफ कार या ऑटोमोबाइल्स इन मुंबई, ये जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, इसने लूज कर दिया। एंड दिस इज व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक। देयर इज नो इंडिविजुअल कैरेक्टर। सो हम रूल बना लो जनरली, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के ही क्वेश्चन आते हैं वेन एवर देयर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। पैन इंडिया होना चाहिए या द एरिया और रीजन स्पेसिफाइड शुड बी लार्ज, इट शुडंट बी स्मॉल। एंड सेकेंड, देयर शुड नॉट बी एनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। सो अब क्वेश्चन आ जाता है, इज जीडीपी मैक्रो और माइक्रो? जीडीपी क्या है? अगेन एक बास्केट ऑफ गुड्स है, राइट। और इस बास्केट ऑफ गुड्स के बारे में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन लेवल क्या चल रहा है, कहाँ पर, किसी नेशन में। प्रोडक्ट स्पेसिफिक है? नहीं। क्या ये पैन इंडिया या पैन कंट्री है? हाँ, ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज़ इंडीड अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। ठीक है। सेकेंड इज प्राइस लेवल ऑफ ऑरेंजेस अक्रॉस इंडिया मैक्रो माइक्रो? देखो, अक्रॉस इंडिया हो गया, पैन इंडिया हो गया, मतलब या रीजन तो बड़ा ही हो गया हमारा। बट ये पूछ रहा है ऑरेंजेस के बारे में, विच इज़ प्रोडक्ट स्पेसिफिक। एंड हेंस, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, दिस इज अ माइक्रो कंसेप्ट। आई होप अब आपको समझ में आया हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो, राइट। एंड जैसे ही कोई कंसेप्ट माइक्रो हो जाता है ना यार, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, विच इज़ दैट देयर आर लेथोरा ऑफ फैक्टर्स जो अब आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। देखो, अगर मैं जीडीपी की बात कर रहा था, बड़ा आसान था। आई कुड हैव सेड कि प्रोडक्शन जो है वो लो चल रहा है बिकॉज लेट्स से इंपोर्ट्स में कुछ इंपोर्ट बैरियर्स है जो कि प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, या देयर इज़ लेट्स से लेस इंक्लिनेशन ऑफ द वर्क फोर्स, राइट, फॉर वर्किंग इन सर्टेन सेक्टर्स। ठीक है। मतलब वर्क फोर्स में ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हाई है, या फिर देयर इज़ अ इम्पोर्ट इम्पीडेंस कॉज्ड बाय द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। कितना एक ब्रॉड फैशन हो गया, एंड हेंस इट इज़ वेरी ईजियर फॉर मी टू डिस्कस। ऑन द अदर हैंड, जैसे ही माइक्रो हो गया ना, अब उसने क्या पूछा, एक तो ऑरेंजेस। सो मुझे एक तो एरियाज निकालने पड़ेंगे, हर एरिया पे कितनी रेनफॉल हो रही है, क्या सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ही मेंटेन्ड है या फर्टिलाइजर के एक्सेसिव यूज से कुछ प्रॉब्लम आ गया है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो प्राइस लेवल है वो क्यों इतना डिस्टॉर्टेड है, राइट। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ जगह पे देयर इज यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन ऑर्डर टू हैव प्री मेच्योरेशन, राइट। ये आपको जीडीपी में मिलेगा क्या? नहीं। एंड दिस इज द रीजन वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर ऑफ अ कंसेप्ट जो आपको प्रॉबेबली मेंस में ज़्यादा पूछते हैं, प्रीलिम्स में दे स्टिक टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है जो आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता है हमारी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। इट हैज़ टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इन टैंडम टू मेक इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी। एक है सोशल इकोनॉमी, एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी सिंपल है दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इम्पेटस, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पेटस कि सोशल इशूज़ जो है उसको रिजॉल्व करना है, या जो भी सोशल फैक्टर्स है, राइट, उनको क्यूरेट करना है इन सच अ वे कि इकोनॉमिक वायबिलिटी भी बने रहे। फॉर एग्जाम्पल, रेलवेज, ये एक मेजर कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडिया का। इसमें एक स्ट्रॉन्ग इम्पेटस है कि जो लोग रोड्स में मतलब अपनी कार्स अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लेन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड एज वेल एज
जिनको अपना सामान है ना, होलसेल का सामान है या फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनको ट्रांसपोर्ट करना है इन अ गिवन टाइम, राइट। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रेलवेज़ के थ्रू हम अकम्प्लिश करते हैं, एंड एट द सेम टाइम वी ट्राई टू मेक इट इकोनॉमिक वाइबल, है ना। ऐसा नहीं है दैट वी आर रनिंग इट in a very heavy margins. Neither we are running it in heavy margins nor in low margins. We are running it at an appropriate economic values. ठीक है। सेकेंड कैपिटलिस्ट है। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमी सिंपली जनरली तो एक नेगेटिव नोशन आता है, बट हियर इट सिंपली मीन्स दैट यू आर प्रमोटिंग फ्री ट्रेड, राइट। यू हैव फ्री ट्रेड, देन अब वो चलता रहता है। इकॉनमी हमारी मिक्स इकॉनमी है, तो ज़्यादा टिल्ट किस तरफ हो रही है, सोशल इकॉनमी या कैपिटलिस्ट इकॉनमी। कैपिटलिस्ट इकॉनमी की तरफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम इकॉनमिक प्रॉफिट्स पर जा रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल रेलवेज ही है, हो सकता है कि वो अपने टिकट का दाम इतना बढ़ाए वेयर इट स्टार्ट्स टू गेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द पैसेंजर्स साइड, राइट। एंड अगर वो सोशल इकॉनमी साइड पे ज़्यादा रहेगा तो अपने टिकट की वैल्यूज़ कम रखेगा, बिकॉज ही इट नोज कि जो जनरल बोगीज़ है वो जो क्यूरेट कर रही है ऑडियंस को, पॉपुलेशन को, इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी एसेंशियल, राइट। एक गरीब को अगर इमीडिएटली कहीं जाना है, उसके लिए प्लेन का टिकट तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एफर्ट करना। ऐसे सेंस में रेलवेज ना ही उसे पहुंचा रही है, बट एट अ वेरी जेन्युइन कॉस्ट ऑफ अराउंड 60 to 70 रुपीज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग राउट, राइट। फिर और भी डिफरेंट टाइप के हमारे पास सिस्टम्स रहते हैं, सच एज मार्केट इकॉनमी विच इज़ मोर डेडिकेटेड टू अस लेसेज फेयर, बट इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट देन कैपिटलिस्ट इकॉनमी। वहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं देख रहे, वहाँ पे सिंपली जो डिमांड सप्लाई है, राइट। सेकेंड है हमारे पास कमांड इकॉनमी, फिर है कम्युनिज्म, और फिर सबका फेवरेट सोशलिज्म, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक सोशलिज्म। आई मेंशन इकोनॉमिक सोशलिज्म बिकॉज सोशल इकॉनमी को जनरली कंफ्यूज कर लेते हैं सोशलिज्म से, विच इज़ नॉट करेक्ट। सोशलिज्म में देयर वुड बी अ लिमिटेड और हाइब्रिड ओनरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मतलब दैट टाटा अगर से एजुकेशन सेक्टर में, डिजिटल एजुकेशन सेक्टर में इतना काम कर रहा है, राइट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव हैवी हैंड अगर सोशलिज्म होता तो, बिकॉज इन दैट केस उसका लिमिटेड ओनरशिप ही होता। बट अगर इंडिया एक सोशल इकॉनमी है, तो टाटा जब सोशल इकॉनमी के अंडर काम कर रहा है, देन देयर इज़ नो सच बैरियर्स ऑन इट। उसको पूरा आपको आपने अलाउड करके रखा हुआ है कि भैया जितना आपको लगता है चार्ज करिए, सब ठीक है। बट एट द सेम टाइम सोशल मोटो या जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीटली अचीव होते रहना चाहिए, राइट। अगेन दिस इज़ समथिंग नॉट क्विंटेंशियल कि आप इसको बिल्कुल रिवाइज और रट लो। इट इज़ ओनली कि आपको पता हो प्राइमा फेसी कि क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। आगे चले। सो सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी कितने हैं? 2 है, 3 है या 5 है। सो जैसे वो लड़की बोली ना, लेवल्स सबके निकलेंगे। सिमिलरली अगर हम इकोनॉमिक सेक्टर्स में जाए तो 5 लेवल्स हैं। लेवल्स सबके फिर से निकल रहे हैं। एक है क्विनरी और एक है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी ये है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। क्विनरी वो है जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, राइट। मतलब यहाँ पर जो इनिशिएशन है ऑफ एनी इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहता है ना। दिस इज समथिंग वहाँ जहाँ पे हम गुड गवर्नेंस के अंदर पर्टिकुलर फिनोमेना को देख रहे हैं, राइट। अब कुछ लोग क्वाटरनरी को यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कुछ क्विनरी को यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट ले ले, या फिर R&D का ले ले कि भाई इंटेलेक्चुअल जो आप बोल रहे हो लगेगा यहाँ पे, है ना, कैपेसिटी। दैट इज़ ओनली पॉसिबल आफ्टर टर्शरी सेक्टर, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर्स में ठीक ठाक रहता है, सेकेंडरी में थोड़ा सा ज़्यादा आपको टेक्निकल होना पड़ता है। टर्शरी सेक्टर्स इज़ अबाउट ऑल टेक्निकल फील्ड्स, राइट। सो ये जो दोनों लेवल्स है ये निकलते रहेंगे अपने अपने में। हमारे लिए मेजर हो जाता है कि हमें इन 3 सेक्टर्स के बारे में अच्छे से आइडिया हो, राइट। अब इनके बेसिक्स, इनका ट्रेंड, वो सब डिस्कस करेंगे, एक अलग सेपरेट लेक्चर है। अभी के लिए याद रखना, डो नॉट गेट कंफ्यूज विद क्वाटरनरी और क्विनरी सेक्टर सो मच कि आप उसको टर्शरी सेक्टर के साथ कंफ्यूज कर लो। क्विनरी सेक्टर है गवर्नमेंट यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को इन्वॉल्व करके डिसाइड करती है इंडस्ट्री के इनिशिएशन, इंडस्ट्री के रेगुलेशन को लेकर, राइट, ताकि इंडस्ट्री का एक मैक्सिमम ऑप्टिमल आउटपुट हो। क्वाटरनरी सेक्टर है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, मेजरली इंडिया के पर्सपेक्टिव में रॉ मटेरियल्स में हो रहा है। सो हम देख रहे हैं अभी नैनो फर्टिलाइजर भी आ गया, राइट। वी ऑल्सो हैव बीन सीइंग अलग अलग टाइप के उन्होंने राइस डेवलप करे हैं गोल्डन राइस के लाइन्स पे, ठीक है। देन वी हैव प्राइमरी सेक्टर, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स है। सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का प्रोसेसिंग है। एंड टर्सरी सेक्टर जहाँ पे मेनली सर्विसेज है, राइट। दीज आर द सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, ठीक है। आगे चलते। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 प्रोसीजर्स है या 3 मेथड्स है। उसका एब्रीवेशन आप याद रखिएगा, पाई या पिक से। सो पी जो है वो है प्रोडक्शन बेस्ड मेथोडोलॉजी। देखो सिंपल
हम क्या बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। हाउ आर बोथ रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहले तो हम प्रोडक्शन समझ जाते हैं। सिंपली एक कंट्री के टेरिटोरियल बॉर्डर्स में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ गुड्स, राइट। सो ऑल गुड प्रोडक्शन जीडीपी। अगर बेस ईयर की बात शुरू कर दी मतलब वो रियल जीडीपी है, नॉमिनल में ऐसा नहीं है ना। अगर बेस ईयर की बात कर दी इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट रियल जीडीपी। बेस ईयर का इम्पैक्ट क्या हुआ, दैट यू आर टेकिंग दोज गुड्स एंड देन यू आर वॉचिंग आउट फॉर ओनली दो स्पेसिफिक गुड्स एज वेल एज उनका प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइस जो आपने लिया है वो प्राइस लेवल लिया है 2011-12 का ही, ठीक है। सो बेस ईयर जहाँ पे भी इन्वॉल्व हुआ इट इज़ रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या हुआ, ईयर ऑन ईयर। अब उसमें बास्केट होता है, तो जिसको भी पीएचडी करना है दे में सी क्या क्या आइटम्स है। अगर गलती से भी यूपीएससी ने पूछा, काइंडली स्किप दैट स्टेटमेंट, दैट इज़ नॉट द स्टेटमेंट जो आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी नॉट एक्सपेक्टिंग आपको बास्केट पता होगा। अब हम बात करते हैं एनडीपी की। सिंपली जीडीपी में से डिप्रिसिएशन, तो जो भी असेट्स है, राइट, जो कि आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, उसका डिप्रिसिएशन। तो एक मशीन है जिस साल ली वो 1 करोड़ रुपए की थी, अगले साल उस पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे मे बी। एंड डिप्रिसिएशन लगाने से क्या होता है कि वो एक वैल्यू ऑफर करता है, अब इस मशीन की वैल्यू क्या है। सो मान लो कल को इस मशीन को हमें बेचना पड़ा अंडर आईबीसी, राइट। किसी बंदे ने बोला कि मैं बैंकरप्ट हो गया, मुझे अभी मशीन बेचनी है, तो जब वो 1 करोड़ की मशीन बेचने जाएगा तो वो उस बेस प्राइस पे थोड़ी ना बेचेगा, दैट वुड बी द प्राइस ऑफ द ईयर इट इज़ फंक्शनिंग इन, ठीक है। तो मान लो nth ईयर है, तो इसके पहले तक जितना डिप्रिसिएशन लगा एक वो लगेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इस मान ले ये 5th ईयर में ये मशीन बेचने जाता है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट वुड बी वेरी वाइबल टू नो कि 5 साल तक मशीन ऑपरेट हुई है। ऑल्सो दिस डिप्रिसिएशन इज जनरली ऑन द लेवल्स की कितना परसेंट यूज़ हुआ है, तो उन सबको मिला के वी कैन से कि मान लो 60 लाख है, तो इस बंदे को 60 लाख से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर उसको 60 लाख से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है दैट इज़ फ्रॉड, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज हमारे जो भी इकोनॉमिक विजिलेंस सिस्टम्स है उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलता है इनसे, ठीक है। अब हम अगला आ जाते हैं जीवीए पर। सो जीवीए क्या है, इट इज़ योर ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो प्रोडक्शन है, सो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि सिंपली गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हर लेवल पे, बिकॉज वी सॉ देवर सेक्टर्स, राइट। तो प्राइमरी सेक्टर पे कितना हुआ, सेकेंडरी सेक्टर पे कितना हुआ और टर्शरी सेक्टर पे कितना हुआ, क्योंकि कुछ तो गुड्स है जो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, कुछ गुड्स है जो यहाँ पे ही पहली बार ओरिजिनेट हो रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल हेयर कट्स, ये थोड़ी ना प्राइमरी सेक्टर के पार्ट है, ये तो सर्विस है जो कि टर्शरी सेक्टर में आएगा। बट देयर इज़ लेट्स से वो क्या बोलते हैं, वे प्रोटीन का शेक, राइट। सो वो वे प्रोटीन पाउडर है, सो जो वे मटेरियल है वो तो प्राइमरी सेक्टर पर आएगा, फिर उसका यहाँ पे प्रोसेस होगा एंड देन फाइनली बिकेगा टर्शरी सेक्टर पर, राइट। हर लेवल ने कितना ऐड करा वो हमारे लिए जीवीए हो जाता है। सेक्टर स्पेसिफिक या लेवल स्पेसिफिक हमें बताता है कि कितना एक्चुअल इकोनॉमी में ऐड कर रहा है हर इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट। सो ये है जीडीपी, इट इज़ सॉरी जीवीए विच इज़ जीडीपी प्लस साइंस एंड टेक। याद रखो बेसिकली आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस बता रहे हो, राइट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट दैट प्रोडक्ट एक्चुअली कॉस्ट, तो मुझे जब ये सफ़र तय करना होगा सबसे पहले तो मैं इसमें से टैक्सेस हटा दूंगा। भाई जो ये प्राइस है इसमें टैक्सेस इन्वॉल्व है, तो मुझे टैक्सेस नहीं चाहिए, तो पहले मैंने हटाया टैक्सेस। एंड जो सब्सिडीज़ लगी है गवर्नमेंट साइड से, फैक्ट्री साइड से, राइट, बिकॉज दे आर सब्सिडीज, दे आर नॉट डायरेक्टली काउंटेड इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बट दे आर इन्वॉल्व इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सो सब्सिडीज ऐड कर देते हैं। इसलिए जीवीए इज जीडीपी प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस। हम इसको याद रखेंगे, जीडीपी प्लस साइंस एंड टेक, ठीक है। सब्सिडीज आर एडेड एंड टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड, राइट। आगे चलते हैं, अगला है इनकम मेथड। अब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, सो इसी पे आ जाते हैं। देखो इनकम मेथड क्या है, अगेन इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, कहाँ से आया, क्यों आया एंड व्हाट ऑल एंड नॉट। सिंपली सिस्टम्स ऑफ नेशनल अकाउंटिंग है, 2008 में आया था, इससे कुछ कुछ आया था, नहीं ज़रूरत ज़्यादा पढ़ने की। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दे गया, जीएनआई एंड एनएनआई विच इज़ योर ग्रॉस नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल इनकम। और भी टर्म्स है, अगेन ऑल द बेस्ट फॉर ऑल पीएचडी कैंडिडेट्स। एनएनआई की बात करें सो इट इज़ ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस डिप्रिसिएशन। एंड एग्जैक्टली व्हाट डिप्रिसिएशन किसका, इनकम है, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ। देखो ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, इट इज़ जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मतलब क्या हुआ, अगर मुझे कोई भी पूछे कि जीएनआई या ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है कंट्री का, आई नो इट इज़ जीडीपी कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक इकॉनमी में, प्लस जो बाहर मेरे लाल प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो भारत के लालास, भारत की प्रजा, राइट, ऑल द इंडियन सिटीजन्स, राइट, दोज आर इंडियन एंड वर्किंग ऑन अदर टेरिटरी, they are earning something and these are to be added in our GDP ताकि हम बता सकें कितना नेशनल इनकम है, बिकॉज दे आर ऑल्सो आर नेशनल सिटीजन्स, राइट। सो उनकी इनकम तो हमें काउंट करना ही पड़ेगा। एंड इफ यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस इट इज़ ऑब्वियस वी ऑल्सो हैव टू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन विच इज़
जितने भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, सॉरी काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हुआ? इनकम ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू फॉरेन सिटीजन्स वर्किंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट? दिस इज योर जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड दिस गिव्स यू ग्रॉस नेशनल इनकम। अब ये जो जीडीपी है ना, इसमें जब मैं डिप्रिसिएशन लगाऊंगा तो ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आया याद? राइट? अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था जीडीपी एंड डिप्रिसिएशन एंड देन एनडीपी। सो एनएनआई इज नथिंग बट इट इज बेसिकली सेइंग एनडीपी, है ना, जीएनआई एट एनडीपी। तो ये एनडीपी निकालने के लिए मैं जीडीपी में से डिप्रिसिएशन हटा दिया, तो जैसे मैंने इसको हटा दिया मुझे जीएनआई मिला एनडीपी वाला एंड दिस इज व्हाट योर नेट नेशनल इनकम इज। सो अब मुझे क्लियर हो गया, अगर नेट आया तो मुझे नेट जनरली लेना है डिप्रिसिएशन, वेदर इट इज एनडीपी या इट इज एनएनआई, राइट? एलिमिनेशन हमारा हो जाएगा इजीली एक ऑप्शन का। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सपेंडिचर मेथड। कॉम्प्लेक्स है, पढ़ने में खूब आता है, जनरली कम ही डिस्कस करा जाता है बिकॉज इसके कंपोनेंट्स आप देख लो कितने सारे एंड अगर मैं देखूँ सो आई एम प्रिटी श्योर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट भी सबको अच्छे से पता होगा, ये डिस्क्रिपेंसीज क्या होती है, जीएफसी क्या है, पीएफसी क्या है, इसमें हम बहुत उलझ जाएंगे। सो वील ट्राई टू रिमेंबर एक्सपेंडिचर मेथड बाय अ सिंपल फॉर्मूला विच इज इनकम इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। मतलब अगर एक बंदा है, मुझे उसकी इनकम बतानी कितनी है, तो मैं ऐसे तो बताता हूँ भैया उसने कितना खर्च करा एक साल में प्लस उसने बैंक में कितना बचा के रखा है। सो ये सेविंग्स हो गई, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, दिस इज द इनकम। और ये एक बंदे की है, अगर मैं इसको पर कैपिटा निकालूँ सो आई विल हैव माय नेशनल इनकम। अब इसका रिवर्स भी काफ़ी बार हमने देखा है, अलग अलग टेस्ट सीरीज में भी आया है एंड यूपीएससी ने थोड़ा सा ट्विस्ट करके या सिंपल मेथड मतलब सिंपल फॉर्म में इसको पूछा है। देखो जीडीपी क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड पूछा उसने, एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आ गया ना क्या है, क्या था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, सेविंग्स थे, इससे हमें इनकम पता चल रहा था। सो हम यहाँ पे भी वही देखेंगे, देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया जीडीपी निकालने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही है ना, ऑल दो वो थोड़ा सा फार ऑफ के लिए, बट हाँ इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर है इन ऑर्डर टू हैव बेटर प्रोडक्ट्स फॉर अस, राइट? एंड प्राइवेट कर रहा है तो गवर्नमेंट को भी करना ही पड़ेगा। सो यू हैव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इसको एडजस्ट करते हैं विथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। वाई? बिकॉज अगेन ये क्या पूछ रहा है, प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन में जो एक्सपोर्ट्स आप कर रहे हो, राइट, वो कहीं ना कहीं फॉरेन में जा रहा है तो उसको काउंट तो करना पड़ेगा ना, प्रोड्यूस तो हमारे उधर ही हुआ है। एट द सेम टाइम अदर साइड ऑफ द कॉइन जो जा रहा है अगर हम उसको काउंट कर दें तो जो आ रहा है हमें उसे घटाना पड़ेगा एंड दिस इज ई माइनस आई। सेकंड कैलकुलेशन मेथड इज सिंपल, जीडीपी इज रियल जीडीपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। याद रखो पहले मैं प्रोडक्ट का कॉस्ट पूछ रहा था, राइट? रियल जीडीपी कहीं ना कहीं मुझे आउटपुट बता रहा है एक्चुअल, तो प्रोडक्ट कॉस्ट के आसपास ही ले जा रहा है, ठीक है, बिकॉज वो बेस प्राइस पे बता रहा है। अगर वो नॉमिनल प्राइस पे बताता फिर तो चीज़ें थोड़ी अलग थी, बट क्योंकि वो मुझे बेस प्राइस पे बता रहा है तो ये मुझे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कितनी प्रोडक्शन हो रही है एग्जैक्ट उसका एक ब्यौरा दे रहा है, उसका एक एग्जैक्ट एस्टिमेट दे रहा है। इसमें से मैं टैक्सेस हटा दूंगा। अगेन क्यों टैक्सेस हटा रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करना है। जो मेरे पास है वो है प्रोडक्ट की प्राइसेस। रियल जीडीपी इज हेल्पिंग मी टू गॉज व्हाट इज द प्रोडक्ट प्राइसेस, मुझे पता करना है प्रोडक्ट कॉस्ट। सो रियल जीडीपी से मुझे पता चला प्रोडक्ट प्राइस एट द बेस प्राइस, उसमें से मैंने इस साल का टैक्सेस सारा हटा लिया और उसमें सब्सिडीज़ ऐड कर दी, तो मुझे क्या पता चला कि कितना प्रोडक्शन एक्चुअली बढ़ा है एंड दिस इज द सेकेंड मेथड विच इज योर आउटपुट मेथड। इन शॉर्ट इट बेसिकली सेज, जब हम आउटपुट मेथड की बात कर रहे हैं ऑफ जीडीपी कि एक्चुअल कितना प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा है, तो 2011 में लेट्स अज्यूम 100 बॉटल मैन्युफैक्चर हो रही थी ऑफ कोको, ठीक है, कोको कोला, और आज 10,000 बॉटलें मैन्युफैक्चर हो रही है ऑफ कोको कोला, राइट? प्राइस लेवल पर दोनों का सेम लेके चलेंगे, तो उस वक्त अगर वो 7 रुपये की बिक रही थी तो यहाँ पे भी 7 रुपये लेके चलना पड़ेगा, तभी ये आउटपुट मेथड लेजिबल है, लीगल है ना, एप्लीकेबल है। अगर मैंने आज की प्राइस लगा दी 25 रुपये, देन दिस इज नॉट आउटपुट मेथड, दिस इज समथिंग कंप्लीटली एल्स। वॉट इट इज, उसमें मैं सिर्फ ये देखूंगा कि इस साल कितना क्या बिका है और कहीं ना कहीं हम चले जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे, ठीक है? आया समझ में? सिमिलरली अगर मैं बस यही देखूं कि कितना बिका है, राइट, कितना बिका है, तो वो जीडीपी है, और बस अब इसमें से क्या मुझे निकालना है, मुझे पता करनी है इनकम, ठीक है, मुझे पता करनी है कि भाई इनकम कितनी है, या इसको रिवर्सल में ले लो कि इनकम मुझे पता है, मुझे पता करना है कि जीडीपी कितना है।
तो इनकम तो मैंने अभी देखा ना, 25 रुपये की बॉटल में ले रहा हूँ एक कोको कोला की, कितना मतलब खर्च हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स वाले से मैंने करके निकाल लिया कि इतना जीडीआई है। अब इसमें से मैंने पहले पहले हटाया टैक्सेस और फिर इसमें ऐड करा सब्सिडीज, तो मुझे निकल आया जीडीपी। इन शॉर्ट एक्सेप्ट फॉर एक्सपेंडिचर मेथड, एवरी टाइम मुझे जीडीपी कैलकुलेट करनी है, इट वुड बी XYZ, है ना, यहाँ पे आप जीडीआई रख सकते हो, रियल जीडीपी रख सकते हो, राइट, एनीथिंग विच इज एबल टू प्रोडक्ट हाउ मच ऑफ गुड्स हैव बीन सोल्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर, माइनस टैक्सेस, क्योंकि वो एडिशनल है, उसका प्रोडक्ट के कॉस्ट से कुछ रिलेशन नहीं, प्लस सब्सिडीज। ठीक है, ये नहीं भूलना है। अब हम रिलेटेड टर्म्स पे आए, क्योंकि तब बात कर रहे हैं प्रोडक्शन पे, एक हमारा IIP है, NSO करता है उसे, उसका बेस ईयर है 2011-12। अब मुझे बताना कि सिंस आई हैव रिटन IIP इज बाय NSO, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। IIP है, इज इट बाय NSO और देयर इज एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिलीजिंग IIP? सो क्या है कि वो काफ़ी सारे उसमें एक्सप्लेनेशन में CSO देके रखा हुआ है, दैट इज द रीजन वाई आई हैव इंक्लूडेड IIP हियर। ठीक है, मॉस्पी निकालता है एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, पहले CSO था, अब वो इसके अंदर आ चुका है बाय एन एक्ट। ठीक है, और बेस ईयर है 2011-12। अगला है प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, PMI। सो PMI क्या है? सिंपली वो आपको बता रहा है कि कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इंडिया में इसकी जो एजेंसी है विच इज़ कंडक्टिंग द PMI इज मार्केट, एंड ये मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन है। सो IIP इज कंपेयरिंग विथ बेस ईयर, PMI इज कंपेयरिंग मंथ ऑन मंथ। ठीक है, दोनों का स्कोप ही अलग है, हेंस ये जो बताएंगे वो भी अलग रहेगा। फर्स्ट मे बी टेलिंग यू द आउटपुट, द एक्चुअल आउटपुट, द अदर वन वुड बी टेलिंग यू द मार्केट सेंटिमेंट। ठीक है, दोनों ही जो टारगेट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव अलग है। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पे। एज आई मैंशन, माइक्रो वाली जो टसल है उसमें हमने मैक्रो कंसेप्ट को क्लियर करा था। उस मैक्रो कंसेप्ट में 4-5 चीज़ें आती है, जिसमें से एक और है इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ मैक्रो कंसेप्ट, मतलब देयर इज़ नो इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर, है ना। आप इसको सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के टर्म्स में नहीं देख सकते कि क्या ये एक पर्टिकुलर सेक्शन बढ़ रहा है, नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उसका मतलब मुझे सारे सेक्टर्स के अक्रॉस देखना है, वेदर देयर इज एन एक्चुअल ग्रोथ बीइंग ऑब्जर्व्ड और नॉट। क्या इसको मेजर करते हैं? येस। किससे करते हैं? इंटरनेशनल लेवल पे अभी सब लोग यूज़ कर रहे हैं HDI, योर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डायमेंशंस क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिकेटर्स है एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड GNI पर कैपिटा एट योर परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना। दोनों को अलग अलग है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना है। एक इंडिकेटर है, एक डिमेंशन है। ठीक है, सो डिमेंशन सॉर्ट ऑफ बता रहा है कि कितना बड़ा क्यूब है, राइट। सो कितना बड़ा क्यूब है ये हमें पता चल रहा है 3 डायमेंशन से, विच इज़ योर हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हमें बता रहा है डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। अब इसको इंडिविजुअल या फिर थोड़ा सा सब लेवल पे अगर हमें मेजर करना है, तब ये इंडिकेटर्स काम आते हैं, सच एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड GNI पर कैपिटा एट PPP। देयर आर अदर रिलेटेड इंडेक्सेस सच एज MDPI, ISDI, GII, राइट, जिसको आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो फॉर प्रीलिम्स। इसको हम मिस्क में पढ़ेंगे, विच इज़ आवर फाइनल लेक्चर। अभी के लिए यहीं तक हमारे कंसेप्ट्स थे। अब इसके आगे क्या है? सो देयर आई हैव इंक्लूडेड 3 PYQ टू समवॉट शो यू द इम्पोर्टेंस जो हमने अभी तक पढ़ी है उसकी। जो पहला वाला है दैट इज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक की समझ। क्लियर है क्या नहीं होता है? पहला क्या नहीं होता है? प्रोडक्ट स्पेसिफिक, राइट। सेकेंड क्या? बड़ा रीजन होना चाहिए, राइट, इंडियन के टर्म्स में पैन इंडिया होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल GNP, GDP GNP तो मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। सो इंक्रीज इन दीज डज नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, या एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट। हो गया ना दोनों प्रोडक्ट स्पेसिफिक, ईजिली एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं। इट हैज़ बिकम ईजी टू एलिमिनेट because these statements does not confine with the concept या characteristics of macroeconomic concept, right? अब हमारे पास बचा poverty and employment increase and imports grow faster than exports. Again
ये एक जनरलिस्टिक है, ये थोड़ा सा क्लोज है, एंड इट ऑल्सो डज मेक सेंस much more than import grows faster than exports, right? And hence the answer here is C. ठीक है, क्लियर हुआ द यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकॉनमी, है ना, मतलब बहुत सारे लोग अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं. कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट. इसका मतलब इतना पैसा है बैंक में तो बैंक इन्वेस्ट करेगी, बट इट इज़ नॉट रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट आउटपुट इंक्रीमेंट, राइट. 4 ऑप्शन है. अब हम जाते हैं सबसे पहले कंसेप्ट पे, सेटरस पेरिबस. ठीक है, देखो, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. सिंपल वो बोल रहा है वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. इसका मतलब मुझे ना थोड़ा सा इसमें और एक दो चीज़ें लगानी पड़ेगी. भाई रेड टेपिज्म भी हो सकता है, एंड ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. इसका मतलब आई हैव इंक्रीज्ड माई फैक्टर्स. इंस्टेड ऑफ अ लीनियर कॉज एंड इफेक्ट, आई एम नाउ डेवलपिंग डीपर इनटू मोर कॉम्प्लेक्स साइड या मोर मेन्स ओरिएंटेड थिंकिंग स्टाइल. हटा दो. इलिटरेसी, भाई लिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है, पहले भी ज़्यादा थी, अभी भी ज़्यादा है, या लेट्स अज्यूम कि दोनों ही साइड पे कांस्टेंट है. उससे क्या, अगेन आप जाओगे, आपको एक अच्छी कहानी बनानी पड़ेगी, विच इज़ बेसिकली मीनिंग कि आपको अपने मेन्स ओरिएंटेड कॉग्निशन में जाना पड़ेगा. अगेन नॉट अ वाइबल ऑप्शन. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, सिमिलर कहानी है लिटरेसी जैसी, एलिमिनेटेबल. फाइनल है हाई कैपिटल आउटपुट रेशो. इसकी कहानी है क्या? नहीं, ये तो सिंपल बोल रहा है ज़्यादा कैपिटल लगेगा आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशो है ना. बड़ी सिंपल लीनियर कहानी है, एंड इट डज मेक सेंस, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे है डी. कुछ नहीं करा, बस मेन्स ओरिएंटेड थिंकिंग को मैंने थोड़ा सा साइड में रखा, एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. अगला वाला अगेन मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट पे. देखो, इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस क्या हो जाती है? मैक्रो कंसेप्ट हो जाते हैं. आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स बिकॉज poverty rates vary from state to state, price level vary, gross state products varies, quality of public distribution varies. अरे भैया, ये क्योंकि है मैक्रो कंसेप्ट, राइट. ईजी है मेरे लिए ये देखना कि ये जो दो स्टेटमेंट्स है ना, बी और सी, ओनली दीज आर ऑल्सो मैक्रो कंसेप्ट. बाकी ये दोनों तो है ही नहीं. और वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रीजन दैट पॉवर्टी लाइन्स आर वेरिएबल अक्रॉस स्टेट्स. तो बस अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है. किसी को 50-50 करना हो तो कर सकता है. अगर कोई लॉजिक लगाएगा तो उसके लिए बड़ा सिंपल होगा ये समझना कि पॉवर्टी बेसिकली मीन्स आर्म्स जो आप गैदर कर रहे हो एक दिन में, द आर्म्स यू आर गैदरिंग इन अ सिंगल डे, राइट. द क्वांटिटी ऑफ इट शुड बी सेटिस्फाइंग सर्टेन न्यूट्रिशनल वैल्यूज. यही तो है हमारी पॉवर्टी. तेंदुलकर कमीशन क्या बोलता है? इतना तो बस बंदे के पास होना ही चाहिए, राइट. अब वो जब बोल रहा है इतना तो बंदे के पास होना ही चाहिए, प्राइस लेवल अगर वैरी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है दैट इन अ स्टेट वेयर देयर आर हायर प्राइस लेवल, उस बंदे के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए टू हैव दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स. जहाँ पे प्राइस लेवल्स कम है वहाँ पे अलग कहानी है, राइट. एंड हेंस हियर द आंसर इज बी. तो यहाँ पे तो 50-50 भी आ गए, एंड थोड़ी सी नॉलेज से हमने सॉल्व कर लिया, right. This is what the economics of UPSC is. You need not to know much, you only need to know less but significant how to say concepts, but significant concepts, nothing else, right. Okay, so this was all for today. Thank you for attending the session. क्या कम क्या ज़्यादा करना है, please leave a review below and do tell me what more can be improved or what was lacking in this particular lecture, right. I'm open to all reviews. It would be beneficial for me also to have an audience making me better day by day, right. So thank you so much for attending the session. अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, हैव अ गुड डे.